السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 163 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 164 کو کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، تو یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد آ گیا تو حمزہ کو نون سے ملائیں گے، ان، پھر نون کو ہمیں جل چھوڑنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، زبر ہے۔ نون کے اوپر رکاوٹ جو ہو رہی ہے وہ غنہ کا قاعدہ بن رہا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر ایک الف کی مقدار رکاوٹ کریں گے، یعنی کہ ان، اتنا ہی۔ اس کے بعد نون کے اوپر زبر ہے تو نون زبر نہ، تو کیا ہو گیا، ان نا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ آگے چلیں گے، فی، فا یا زیر، فی یا ساکین اور اس سے پہلے زیر کی حرکت یا مدہ کا قاعدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آگے خلقس، خا لام زبر خل، خا چونکہ موٹے حروف میں سے ہے لہٰذا اسے گول کر کے ادا کرنا ہے، خا نہیں بولیں گے بلکہ خا، 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 خا لام زبر خل، 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 لام کو ہمیں باریک رکھنی ہے۔ دھیان رہے کہ لام موٹا نہ ہونے پائے، اگر لام موٹا ہو رہا ہے تو اس کو درست کر لے۔ خا کو موٹا نکالنا ہے، لام کو ہمیں باریک رکھنی ہے، جیسے کہ خل، 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 سمجھ آ رہی۔ اس کے بعد قاف بھی موٹا ہوگا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہے نا 7 ہے، کتنے ہیں، 7، 7۔ اس میں سے کیا کیا ہے، خا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف اور غین، یہ 7 حروف حروف مستعلیہ کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ جن حرفوں کو موٹا پڑھنے کا حکم ہے اسے کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ۔ اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے، استعلا۔ استعلا کے معنی ہے بلند ہونا، موٹا ہونا، بلندی پر ہونا، تو استعلا سے بنا مستعلیہ۔ جن حرفوں کے اندر صفت استعلا پائی جاتی ہے ان حرفوں کو کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ۔ سمجھ آ رہی۔ جن حرفوں کو باریک پڑھا جاتا ہے ان کے اندر استفال کی صفت پائی جاتی ہے۔ کس چیز کی صفت، استفال، یعنی کہ نیچے رہنا، نیچے، پستی، پستی ہوتا ہے معنی، پستی میں رہنا، اسے کہتے ہیں استفال کی صفت۔ تو جن حرفوں کے اندر استفال کی صفت استفال پایا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف مستفیلہ۔ ادھر ہے حروف مستعلیہ جو 7 حرف ہے، 7 حروف جو ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں حروف مستعلیہ، اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں حروف مستفیلہ۔ ٹھیک ہے، تو خا بھی موٹا پڑھا جائے گا اور قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے خلقس، قس، اور سین میں ملاتے ہوئے سین کی آواز ظاہر ہوگی، سیٹی والی جو صفت ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گی، قس، ایسا۔ اس کے بعد سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، تا زیر تی، سماواتی، ان فی خلق السماواتی۔ سمجھ آ رہی، کہاں کہاں پر کیسے کیسے اٹھانی ہے آواز کو، کیسے ڈاؤن کرنا ہے۔ آگے والارض، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر اور،
را को मोटा रखना है। क्यों? यहाँ पर कौन सा कायदा बन रहा है? यहाँ पर देखें, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा राय साकिना व मुशद्ददा का कायदा तो बिल्कुल जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करें, नूरानी कायदा सीरीज़ बोलकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपने सर्च करना है राय मुशद्ददा और राय साकिना का कायदा, तो वो आ जाएगा तफसीली तौर पर, वहाँ पर मैंने समझाया है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये देखिए राय साकिना है। अब राय साकिना का क्या मतलब? जिस रा के ऊपर सुकून आ जाए वो राय साकिना बन गया। अगर किसी हर्फ के ऊपर सुकून आ जाए ना तो वो साकिना बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ रा के ऊपर आ गया तो राय साकिना। अब राय साकिना से पहले ज़बर है, इसलिए हमने रा को क्या किया? मोटा किया। अगर इस रा से पहले ज़ेर होता तो इस रा को हम क्या करते? बारीक रखते, ठीक है। तो राय साकिना का फैसला उससे पीछे वाला जो हर्फ होता है, अब पीछे का मतलब क्या है? उससे पहले जो हर्फ होगा उसकी हरकत के मुताबिक फैसला होगा कि राय साकिना मोटा पढ़ा जाएगा या बारीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर राय साकिना से पहले ज़बर है, अगर यहाँ पर पेश होता तब भी हम रा को मोटा पढ़ते, लेकिन अगर इस हमज़ा के नीचे ज़ेर होता, इर होता, इर, तो हम इस रा को क्या करते? बारीक रखते। तो समझ आ रही? आगे ये हर्फ क्या है? दौद है। क्या है? दाढ़ से निकलता है, जो दाढ़ है ना उससे हम निकालते हैं दौद को, दौद दौद, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको भी मोटा पढ़ना है। तो जब पूरा पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को तो क्या होगा? यहाँ से देखें, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, समझ आ रही? वल अर्द, रा भी मोटा और दौद भी मोटा, दोनों को मोटा करेंगे। आगे वल अर्दी, आगे वख्तिलाफिल, वाव खा ज़बर, वख वख, वाव खा ज़बर, वख ताज़िरती, लाम अलिफ ज़बर ला, वख्तिला फिल, फा लाम ज़ेर, फिल, लाम या ज़बर, लई, लाम ज़ेर, ली। अब यहाँ देखिए, ये तो समझ आ गई ना, वख्तिला में अलिफ मद्दा करेंगे, फा को लाम से मिला देंगे, बिल्कुल आसान। उसके बाद लाम को या से हम मिला रहे तो यहाँ पर या साकिन, उससे पहले ज़बर है, कौन सा कायदा हो गया? यालीन का। और यहाँ पर नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। देखिए ज़बर की सूरत में ना, चाहे वो ज़बर या साकिन से पहले हो या वाव साकिन से पहले हो, इस बात को गौर से सुने जो मैं बता रही हूँ। ज़बर की सूरत में यानी कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, ज़बर की सूरत में आपने बिल्कुल आवाज़ को लंबा नहीं करना है, क्योंकि वो वावलीन और यालीन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ज़बर है ना, या साकिन से पहले क्या है? ज़बर है। कहीं आपको वाव साकिन से पहले ज़बर मिलेगा, तो ज़बर की सूरत में अपनी आवाज़ को लंबा नहीं करना, वहाँ पर आपको नरमी के साथ जल्द अदा करना है, ठीक है। और अगर या साकिन से पहले ज़ेर दिखे तो खींचना है, और वाव साकिन से पहले पेश दिखे तो खींचना है। तो इस बात को ख्याल में रखें। ज़बर की सूरत में आपने जल्दी करना है और नरमी के साथ अदा करना है, बिल्कुल लंबा नहीं करना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वख्तिलाफिल लैली, आगे वन नहारी, वन क्यों किया? क्योंकि नून मुशद्दद का गुन्ना कर रहे हैं हम। अब देखिए नून मुशद्दद का गुन्ना करने के लिए कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। जैसे बाज़ औक़ात कंडीशन होता है ना, शर्त होती है कि ये चीज़ें आपको नून साकिन के बाद आएगी तभी करना है, या तनवीन के बाद आए तभी करना है। तो ये जो वाहिद एक जो कायदा है कि नून के ऊपर शद हो या मीम के ऊपर शद हो, ये दो हरफों को आप याद रखें। नून और मीम ये दो हर्फ ऐसे हैं जो बग़ैर कंडीशन के इसके ऊपर अगर शद आ जाए तो वहाँ पर आपको गुन्ना करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए नून के ऊपर शद है ना, लेकिन इससे पहले
कोई नून साकिन है नहीं है, कोई तनवीन है नहीं है, फिर भी हम यहाँ गुन्ना कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने गुन्ना किया। इससे पहले तो कोई नून साकिन कोई तनवीन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने गुन्ना किया। तो नून और मीम ये दो हर्फ के ऊपर शद आ जाए बगैर कंडीशन के, यहाँ पर गुन्ना करना है। तो समझ आ गई। आगे देखें, हारी, हा में अलिफ मद्दा करेंगे और रा के नीचे क्या है, जेर है, तो इसे हमें बारीक रखनी है। आगे, वल फुल्किल्लती, वाल लाम ज़बर वल, फा लाम पेश, फुल, काफ लाम जेर, किल लाम ज़बर ला, ता या जेर ती। यहाँ पर हम प्रेशर डाल रहे, गौर करे, हिज्जे में भी गौर करे। जब मैं हिज्जे कर रही हूँ तो भी गौर करना है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ता या जेर ती, यानी कि खींचना है यहाँ पर। तो जब हम पढ़ेंगे वन नहारी वल फुल्किल्लती, समझ आ रही, वल फुल्किल्लती, प्रेशर डालते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कायदा हो रहा है या मद्दा का, या साकीन उससे पहले जेर। तो ये लाइन समझ आ गई। यहाँ पर रा को क्या रखना है, बारीक रखना है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, जेर है। आगे, तजरी, ताजीम जबर तज, रा या जेर री, री आवाज में, और मैं जब पढ़ूं तो उस पर गौर करना है। तजरी, जीम में हम क्या कर रहे हैं, कलकला कर रहे हैं। तज 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 री, तज री, समझ आ रही। अगर कोई यहाँ पर पढ़ दे तज री, क्या पढ़े, गौर से सुने आवाज को, तज री, वल फुल्किल्लती तजरी, ऐसा पढ़े, तजरी। ठीक है, तो वो तजरी पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वहां पर कलकला अदा नहीं हो रहा है। तो तज में आवाज अटकेगी नहीं, बल्कि वापस आएगी, वापस आपकी तरफ वापस आनी चाहिए। कैसे, तज तज तज। अगर कोई करे तज, क्या करे, तज तज, कलकला नहीं हुआ। हमको पढ़ना है तज तज तज। ठीक है, तो आवाज को दाबना नहीं है, बल्कि मुंह को खुले रखना है, ताकि वो आवाज जो है ना टकराए, ता जीम से टच होकर टकराए और जीम की जो आवाज है फिर से वापस आए। गोया कि यूं मालूम होगा कि जीम को आप 2 दफा पढ़ रही हैं, लेकिन हम एक ही बार पढ़ रहे हैं, लेकिन वो टकरा कर वापस आ रही है उसकी आवाज। इसे कहते हैं बाउंसिंग साउंड, और इसका बहुत तरह का नाम है, और अरबी में कहा जाता है कलकला करना, हिलाना। ठीक है, डबल डबल वो हर्फ मालूम होगा। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तजरी तजरी तजरी, रा को बारीक रखते हुए खींचेंगे। आगे, फिल बहरी फिल बहरी। अब यहाँ देखिए, फा लाम ज़ेर फिल, बह ज़बर बह, बह बह, कौन सा हा है, हा नहीं है, ये है हा। समझ आ रही, हा नहीं, हा और हा दोनों में फर्क है, दोनों की आवाज में फर्क है, इस चीज को समझे। यहाँ पर कौन सा है, हा। हा बिल्कुल सीने के नीचे हिस्से से निकालेंगे, हा हा हा। फिल बहरी। अब यहाँ देखिए, रा को हम बिल्कुल जल छोड़ रहे, यहाँ भी जेर है, यहाँ भी जेर था, लेकिन यहाँ पर हमने खींचा था ना, तजरी री, ऐसा किया था। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे, फिल बहरी, री री जल्दी छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रा के नीचे जेर है, इसके बाद या साकिन नहीं है। या साकिन होता तब वो या मद्दा का कायदा चला जाता, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ जेर का कायदा है। और जबर जेर को कैसा पढ़ना, जल्दी पढ़ना, बिल्कुल लंबा नहीं करना। तो यहाँ पर हमें लंबा बिल्कुल नहीं करना। आगे क्या है, बिमा यंफउन नास, बाजेर बी, मीम अलिफ जबर मा, बीमा,
बीमा, माँ में खींच रहे, बी को जल्द अदा कर रहे। आगे यंफउन्नास, यंग इख्फा करेंगे, नून साकिन के बाद फौरन फा आ रहा है, तो ये हो गया इख्फा का कायदा। नाक में नून की आवाज़ को छुपाएंगे और फिर उन, ये क्या है, ये हर्फ क्या है, फ़उन, ये है आइन, क्या है, आइन, आइन। हमजा यहाँ पर नहीं निकाले। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते यनफ़उन्नास, यनफ़उन्नास, उन्नास, उन जो लोग पढ़ते हैं वो गौर से देखें, यहाँ पर हमजा है नहीं है ना, यहाँ पर तो आइन है, हर्फ आइन है। तो मखारज से जो निकालने के लिए बताया गया है कि हर्फों को उसके मखरज से निकाले। क्यों? इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजूहात ही यही है कि हर हर्फ अपने मखरज से निकलेगा तो सही निकलेगा, सही अदा होगा। तो यहाँ पर आइन है, कौन सा हर्फ है, आइन, आइन। यनफ़उन्नास, यनफ़उन, उन, 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 समझ आ रही? तो आइन निकालेंगे। उसके बाद नासा, नून के ऊपर शद है, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। तो ये यहाँ पर दो कायदे पर गौर करना है। पहले तो यहाँ पर हम इख्फा कर रहे और यहाँ पर गुन्ना कर रहे। जब मैं मिलाकर पढ़ूंगी तो गौर से सुने, और गौर से सुन के आपको ये समझ आएगा कि गुन्ना और इख्फा की जो आवाज़ है उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, गौर से सुने। बिमा यंफ़उन्नास, यंफ़उन्नास। ठीक है, पहला हमने इख्फा किया, दूसरा हमने गुन्ना किया। ठीक है, आगे चले। वमा अंज़लल्लाहु, वमा में हम मद कर रहे, 3 से 4 अलिफ खींचना है। वमा, उसके बाद अंज़लल्लाहु, में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इख्फा करेंगे, क्योंकि ये जो नून साकिन है उसके बाद हर्फ ज़ा आ रहा है। इख्फा बहुत जगह होता है। ठीक है, 15 हरूफ ऐसे हैं जहाँ पर हम इख्फा करते हैं, जब वो हरूफ में से कोई भी हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए। तो आपको कैसे समझ आएगा कि कहाँ पर हमें इख्फा करना है? तो उसके लिए आपने क्या करनी है, उसके लिए आपको इख्फा के जो 15 हरूफ है, जो आपको लेसन में मिल जाएगा, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं इख्फा। तो वो जो 15 हरूफ है वो आपने ज़बानी याद करना है। जब आपको ज़बानी याद हो जाएगा, उसके बाद जब आप कुरान पढ़ेंगी तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें सामने आएंगी कि यहाँ पर इख्फा करना है, यहाँ पर इख्फा करना है। ठीक है, लेकिन जब तक वो जो 15 हरूफ है वो अगर आपको याद ना हो तो हर कवायद के लिए आपको नूरानी कायदा खोलकर देखना पड़ेगा। तो पहले जो कवायद है ना नूरानी कायदे में, उन सबको ज़बानी रट जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इख्फा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे वमा अंज़लल्लाहु, लल्लाहु, फिर यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह का लाम आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना हरूफ इख्फा जो मैं बता रही हूँ ना, जो 15 हरूफ है जो आपको ज़बानी याद करनी है, वो 15 हरूफ क्या क्या है, यहाँ पर एक बार मैं गिना रही हूँ, गौर से सुने। ता से उसकी शुरुआत है, ता, सा, जीम, दाल, लाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, फा, क़ाफ, काफ। ये 15 हरूफ हैं। ये 15 हरूफ जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो आपको नाक में नून की आवाज़ छुपानी होगी, जिसे कहा जाता है इख्फा करना। ठीक है, समझ आ गई कि इख्फा के 15 हरूफ क्या क्या हैं। अब इस जो हरूफ मैंने गिनाए हैं ना, उनको आपने ज़बानी याद कर लेना। चाहे आप कापी पर नोट कर ले, चाहे आप मेरी वीडियो से जाकर देख ले, चाहे आपके पास अगर बुक है नूरानी कायदे का तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया, लफ्ज़ अल्लाह का लाम को मोटा रखा मैंने क्योंकि लाम के ऊपर ज़बर है। आगे
मिनस समाई, यहाँ फिर मद करेंगे, आपने बताना है यहाँ पर कौन सा मद है। मद जहाँ पर भी आ जाए 3 से 4 अलिफ खींचना है। मिनस, मिनस, सीन में सीटी की आवाज, मिनस समाई। हर्फ सीन को अदा करते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि सिफत सफ़ीर जाहिर होना चाहिए, ठीक है। सिफत सफ़ीर यानी कि सीटी वाली जो सिफत है वो जाहिर होनी चाहिए जब आप सीन को अदा कर रहे हैं। मिनस समाई। अब यहाँ देखें, मिम्मा इन। अब यहाँ पर देखें कौन कौन से कायदे हैं, मैं बता रही हूँ, गौर से सुने। यहाँ नून साकिन के बाद हर्फ मीम आ रहा है, यहाँ पर हो रहा है इदगाम का कायदा, यानी कि इदगाम करेंगे, ठीक है। तो इदगाम, कौन सा इदगाम हो रहा है यहाँ पर, ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि इदगाम की हम लोगों ने 2 किस्में पढ़ी है, इदगाम ताम और इदगाम नाकिस। तो यहाँ पर हो रहा है इदगाम नाकिस। तो यहाँ पर आपको इदगाम नाकिस जो होता है वो गुन्ने के साथ होता है, तो यहाँ पर गुन्ने के साथ इदगाम करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, मिम्मा, मद भी कर दिया, इन, क्यों, क्योंकि 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हर्फ फा आ रहा है, और अभी मैंने जो 15 हरूफ आपको गिनवाए हैं उसमें से फा भी है, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। पहले गुन्ना किया, गुन्ने के साथ इदगाम, इदगाम नाकिस, उसके बाद इख्फा, ठीक है। मिम्मा इन फ़अह्या बिहिल अर्द, या अलिफ मद्दा करके, फ़अह्या बिहिल अर्द, समझ आ रही, बिहिल अर्द, रा भी मोटा और दौद भी मोटा। बाद, बाइन ज़बर, बा, समझ आ रही। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते बादा, क्या पढ़ेंगे, अर्ज़ा बादा, बादा नहीं है, बादा है, बादा, समझ आ रही। आइन को वाज़े करे। आगे, मौतिहा, मीम वाव ज़बर, मऊ, वाव साकिन, उससे पहले ज़बर वालीन, नरमी के साथ जल्द अदा करना है। बताया कि वाव साकिन और या साकिन से पहले कभी भी ज़बर दिखे वहाँ पर नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। मौतिहा, ताज़िर ती, हा अलिफ ज़बर हा, यहाँ पर अलिफ मद्दा कर रहे हैं, तीहा। आगे, वबस्सा, वाव ज़बर व, बा सा ज़बर बस, सा ज़बर सा, वबस्सा। सा में सीटी आवाज़ नहीं आएगी, नरमी के साथ अदा करेंगे, जिस तरीके से हम जाल को अदा करते हैं ना, जाल और सा का मखरज एक ही है, ठीक है। जाल और सा, जाल, सा, सा, सा। अब यहाँ पर कोई पढ़ दे सा, क्या पढ़ दे, वबस्सा, वबस्सा, तो ये हर्फ सा नहीं रहा, वो सीन में चेंज हो गया, ये वाला हर्फ में चेंज हो गया। तो जहाँ आपकी आवाज़ ये वाली आ रही, वबस्सा, वबस, ये वाली साउंड आ रही, तो ये समझ ले कि सा हर्फ सही से अदा नहीं हो रहा, उसको सीखने की ज़रूरत है। तो समझ आ गई कि जाल में और सा में सीटी वाली आवाज़ ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए और सख्ती भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाज़ औक़ात जाल को लोग पढ़ते हैं ना, जाल, जाल, जाल भी पढ़ते हैं बाज़ औक़ात लोग, तो गलत है, इसको दुरुस्त करें। तो यहाँ पर हम नरमी के साथ बगैर सीटी के निकालेंगे। वबस्सा फ़ीहा, वबस्सा, सा, 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 वबस्सा फ़ीहा, फ़ीहा, फ़ी में या मद्दा, हाँ में अलिफ मद्दा। मिन कुल्ली, यहाँ पर देखें नून साकिन, और नून साकिन के बाद हर्फ काफ आ रहा है, काफ भी हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से एक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, मिन कुल्ली,
मिन, ऐसा कुल्ली। उसके बाद यहाँ देखिए दाब्बा, यहाँ पर देखिए हर्फ मद के बाद वाले हर्फ के ऊपर क्या है, क्या है, शद है ना। तो ये कौन सा हुआ मद, आपने बताना है। ठीक है, तो आज मैंने 2 सवाल पूछा है, यहाँ पर कौन सा मद है और यहाँ पर कौन सा मद है, दोनों मद का नाम बताना है। तो यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे अगर स्वाद के ऊपर, तो यहाँ पर ता जो है इसको हम क्या बना देंगे, हाय साकिना बना देंगे। ध्यान रहे कि गोल ता पर जब भी आप वक्फ करेंगे तो उसको हाय साकिना बना देंगे, और जब हाय साकिना बना देंगे तो उस हा को स्टॉप करते हुए साफ और वाज़ेह तौर पर निकालना है। बाज़ औक़ात लोग जब स्टॉप होते हैं तो वो पढ़ते, उनको मालूम है कि यहाँ पर हा बनेगा, ये कायदा वक्फ करने का उनको मालूम है कि हा बनाना है यहाँ पर, लेकिन जब स्टॉप होते हैं तो हा की आवाज़ और हर्फ हा अदा नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जब स्टॉप करेंगे तो पढ़ेंगे दाब्बा दाब्बा दाब्बा, गोया कि हा नहीं है। तो यहाँ पर स्टॉप साफ और वाज़ेह तौर पर कैसे होना है वो गौर से सुने। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, बाह बाह बाह, एंड में हा, बाह बाह बाह, समझ आ रही, ऐसा स्टॉप होना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ से देखें फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। ठीक है, आगे वतस्रीफ़िर रियाही, वाव ज़बर वा, ता स्वाद ज़बर तस, रा या ज़ेर री, फा रा ज़ेर फिर। अब यहाँ पर देखिए वा को जल्द अदा करेंगे, ता को स्वाद से मिलाएंगे, स्वाद मोटा हर्फ है, मोटा करके अदा करिए। तस 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 नहीं बोलना, तस ऐसा नहीं बोलना, यानी कि बारीक नहीं निकालना वरना सीन बन जाएगा। यहाँ पर हमें पढ़ना है तस तस तस, रायाज़ेर री, रा को बारीक रखनी है, फाराज़ेर फिर, तसरी फिर, यहाँ भी रा बारीक और यहाँ भी बारीक। यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर है, यहाँ पर राय मुशद्ददा के नीचे ज़ेर है। तो ज़ेर की सूरत में चाहे वो राय मुशद्ददा हो, चाहे वो राय साकिना से पहले ज़ेर हो, चाहे उस रा के ऊपर नीचे ज़ेर हो, रा की सूरत में, ज़ेर की सूरत में रा हर हाल में क्या पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रा ज़ेर री, या खड़ा ज़बर या, हा ज़ेर ही, वतस वतस वतस, समझ आ रही स्वाद कैसे निकालना है, वतस्रीफ़िर रियाही। आगे वस्सहाबिल, वस वस सहाबिल, हा अलिफ ज़बर हा, हा अलिफ ज़बर हा, बा लाम ज़ेर बिल, वस्सहाबिल मुसख्खरी, मुसख्खरी, खरी खरी खरी, ख्वा मोटा रा बारीक, समझ आ रही, मुसख्खरी बैनस, बाया ज़बर बै, नून सीन ज़बर नस, बैनस, समाई, ई में बिल्कुल जल्द छोड़ेंगे, यहाँ तक देखें, वतस्रीफ़िर रियाही वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समा। आगे बैनस समाई वल अर्ज़ि, वल रा को मोटा क्योंकि रा से राय साकिना से पहले ज़बर है, वल अर्ज़ि बहुत ज़ेर ज़ी, लआयातिल, लाम ज़बर ला, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ा ज़बर या, तालाम 2 ज़ेर तिल, लआयातिल। अब यहाँ पर देखें 2 ज़ेर की तनवीन, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हर्फ लाम आ रहा है, यहाँ पर हमें इदगाम करना है
لیکن ادغام تام کرنا ہے، جو ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے۔ تو بغیر غنہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ اظہار کی طرح پڑھنا ہے، جیسے کہ تل، یہاں پر لام کے اوپر رکاوٹ نہیں کریں گے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہم کریں گے 1 سیکنڈ، تو اوپر ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا، یہاں پر بھی ادغام کیا تھا نا، لیکن یہاں پر کون سا ادغام کیا تھا، ادغام ناقص جو کہ غنے کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے میم میں رکاوٹ کری تھی، لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے، ادغام تام جو بغیر غنے کے ہوتا، تو یہاں پر رکاوٹ نہیں کرنا، جلدی پڑھ کر نکلیں گے، تو کیا پڑھیں گے، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم، لآیات لقوم، ایسا پڑھنا ہے۔ اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے لآیات لقوم، تو تل ایسا جو کریں گے نا تو غلط ہو جائے گا یہاں پر، تو یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، یہاں پر ہم جلدی نکلیں گے۔ اس کے بعد لام زیر لی، قاف واو زبر قو، یہاں پر واو ساکن، اس سے پہلے زبر، یہاں پر پھر ہم واو لین کر رہے، یہ قومی، میم یا دو زیر می، یہاں پر پھر ہم ادغام ناقص کریں گے کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد حرف یا آ رہا ہے، تو یہاں پر پھر ہم غنے کے ساتھ ادغام کریں گے جیسا ہم نے یہاں پر کیا تھا، سیم ٹو سیم، تو ہم کریں گے لقوم می یعقلون، 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 قاف زرقی، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو نون کا زبر ہٹا دیں گے۔ ایک بار اوپر سے دیکھیں اور غور سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ تو پوری آیت کو میں نے پڑھا ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، سمجھ آتا ہے تو اس کو دیکھیں، اس کی مشق کریں، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو یقیناً شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ جو کہ خواہش مند ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، کہیں جا کر نہیں سیکھ سکتے، کسی کو بلا کر نہیں سیکھ سکتے، تو ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے، مجھے مزید علم سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔